Like I was shocked when I saw negative marks, and not only in one or two. I was like negative in physics, negative in chemistry, and it was like how I मतलब कुछ समझ में नहीं आया यार, ऐसे हो कैसे गया। आप सिर्फ जेई का कुछ ही महीना स्टार्ट हुआ है और आपके साथ सब कुछ नेगेटिव होने लगा। एवरीथिंग वाज लाइक गोइंग नेगेटिव व्हिच यू नेवर एक्सपेक्टेड। तो होता क्या है वहाँ से, आई वाज ब्रोकन फ्रॉम इनसाइड। I don't know, it sounds silly, but it was very like I was like not in a good situation, and पढ़ाई भी हमसे हो नहीं रहा था अच्छा सो से। हे एवरीवन, दिस इज प्रिंस एंड इस पॉडकास्ट के अंदर हम लोग देख रहे हैं एक बहुत ही शानदार आईटी एस्पिरेंट की जर्नी कि किस तरीके से वो अपने अपनी जेई प्रिपरेशन करी। सबसे अच्छी बात जो है कि उसने जो अपनी जेई प्रिपरेशन करी वो विदाउट कोचिंग करी है, और साथ ही साथ में उसकी जर्नी बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल है। क्योंकि जब मैंने उसकी पूरी जर्नी सुनी, और जैसा कि आप लोग आगे पॉडकास्ट में देखोगे, तो उसकी जर्नी की स्टार्टिंग में जब उसने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो स्टार्टिंग में उसके नेगेटिव मार्क्स आया करते थे। नेगेटिव मार्क्स से लेके आईआईटी खड़गपुर तक का सफर उसका किस तरीके से रहा, आईआईटी खड़गपुर तक किस तरीके से वो पहुंचा, इतनी सारी जो प्रॉब्लम्स आई किस तरीके से उसने टैकल करी, वो सारी प्रॉब्लम्स हम लोग उससे डिस्कस करेंगे और उससे उसका सॉल्यूशन भी पूछेंगे। ठीक है, So first of all, thank you, Prince, for inviting me on your channel. So I'm Aditya Prakash, and I'm from Patna, and currently I'm pursuing mechanical engineering from IIT Kharagpur. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आदित्य आपकी बिल्कुल जेई प्रिपरेशन की स्टार्टिंग से। कहाँ से आपकी जेई प्रिपरेशन स्टार्ट हुई, कहाँ से आपका बेस बनना स्टार्ट हुआ, बिल्कुल स्टार्टिंग की जर्नी आपकी कहाँ से थी, स्टार्ट करते हैं। So basically, I started my preparation when I was in class 11th, and partially, like you can say that I also started studying of 11th and 12th part in 9th itself. एंड इसका मेन रीज़न ये था कि मेरे जो फ्रेंड्स थे, आई थिंक दे वर ऑल्सो लाइक वेरी इंथुसियास्ट इन रीडिंग 11th एंड 12th। सो 9th में हम लोग साथ में बहुत सारे ओलंपियाड्स का प्रिपरेशन साथ में करते थे, एंड बहुत सारे जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के टेस्ट हो गए, तो उसका भी प्रिपरेशन हम लोग साथ में ही करते थे। तो इसका बेनिफिट मिला कि माई फ्रेंड सर्कल वॉज वेरी नाइस एक्चुअली। So ninth में I used to solve HC Verma along with my friends, and few parts of mathematics, like you can say complex numbers, theory of equations, and in physics also, the part was like kinematics, forces, laws of motion, and center of mass, circular motion, rotational. We also read even rotational mechanics also. And when we were in class 10th, also in physics, 10th and 12th actually matches. The syllabus matches for physics. So 10th maybe we used to read the electrodynamics, like current, electricity, electrostatics, magnetism. These were our favorite topics as we were preparing for physics olympiad also. So ये सब चीज़ करना इम्पोर्टेंट भी था, तो हम लोग साथ में प्रिपेयर करते थे। So let me tell you one important application for your IIT JEE preparation. That application is Philo. Philo is the only world's instant tutoring platform. It will connect the student within 60 seconds to your tutors 24/7. Students from class 8 to 12 can use this application. So basically how this application will help you if you are doing your exam preparation or your test preparation during weekend and you are facing problem in understanding the concept and solving problems, then you can directly open this app, and this app will connect you with the tutor within 60 seconds. Philo has more than 1.7 million students and 50,000 plus best tutors registered on the platform, which is by far the largest community of tutors in this world. If we talk about some best features of Philo application, the video sessions are live one-on-one as well as private sessions. Student can do as many calls as they want. Student can mark their favorite teacher. If next time they face problem, they can take help from the same teacher. The student will also get to solve unlimited mock tests for their exams. So guys, जाओ और चेकआउट करो इस एप्लीकेशन को, काफी अच्छा एप्लीकेशन है। अगर ये सेम एप्लीकेशन मेरी जेई प्रिपरेशन के टाइम पे होता तो मैं जरूर इसको यूज करता। So this was like what I did in 9th, 10th, and actually what happened that when I was in the end of my 10th, like every student, sub student, like they are like एक चीज और जैसे कि 10th में हम थे, तो when I was in here in Patna, we have Vidya Mandir classes, VMC, and I was in the top batch of that. So and me along with Mayank, Mayank was also in that batch. So we were in like Mayank was in FITZI and VMC both, and I was only in VMC. So we were in top batch in VMC. So that was our right thing, I will say. And क्या हुआ कि 10th जब खत्म होने लगा बेसिकली, देन आवर परफॉर्मेंस वाज वेरी नाइस। सो वहाँ के डायरेक्टर ने हम लोग से कहा कि तुम लोग अच्छे हो पढ़ने में, देन व्हाट वी आर सेइंग कि हम आपको ऑफर कर रहे हैं कि आप 11th 12th में यहाँ पे आप लोग यहाँ के टॉप बैच में एडमिशन ले सकते हो। बट थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि पटना रहे या फिर कोटा जाए। तो उस केस में लाइक बहुत सारे जो मेरे फ्रेंड जैसे मयंक भी था,
तो वो लोग कोटा जाने का प्लान कर चुका था, मतलब इट वाज लाइक कंफर्म दैट दे आर गोइंग टू कोटा। बट मेरे साइड से ऐसा कुछ था नहीं, मतलब माय फादर वाज लाइक, पापा ऐसे नहीं थे, पापा वाज लाइक कि he wanted me to present in front of me, and he wanted like didn't want to send me outside. This was the reason. So ओके ओके this my father actually said कि नहीं तुम कोटा नहीं जाओ, एक्चुअली मेरा मन जाने का था। तो बट ओके ठीक है, पापा बोल रहे नहीं जाते हैं, तो थोड़ा सा हम भी बोले कि यार जाना चाहिए, वहाँ का इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है, मेन वहाँ का इन्वायरमेंट फैक्टर है, तो वहाँ जाना चाहिए। बट हाँ पापा बोले कि ठीक है, मतलब पटना में ही रहो ना, क्या जा रहा। तो मतलब फिर पटना स्टे कर गया। और फिर एक चीज़ और हुआ कि जैसे कि हम लोग साथ में, मेरा दोस्त लोग था, तो वो वहाँ पे FTRE फिटजी का जो टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन होता है, हाँ हाँ तो उसके लिए वी प्रिपेयर्ड, एंड उस टेस्ट में भी जा कर के हम अपने दोस्त लोग के साथ गए, एंड वी डिड वेल। एंड इन फिटजी ऑल्सो वी वर आर ओवरऑल ऑल इंडिया रैंक वाज वेरी नाइस। सो वी वर हैविंग कैश रिवॉर्ड, दे वर ऑफरिंग कैश रिवॉर्ड ऑल्सो। सो फिटजी में क्या था कि मतलब फाइनेंशियली इट वाज वेरी, फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं होता ऑब्वियसली मेरे मतलब मेरे साइड से। बट विद BMC में क्या था कि जैसे कि वहाँ पे फाइनेंशियली ऑब्वियसली पे करना पड़ता। देन आई वाज लाइक कि मेरे सारे फ्रेंड्स जो हैं वो मतलब जो पटना में रह रहे हैं, जो भी बचे खुचे थे, दे वर लाइक कि हम लोग फिटजी जाने वाले हैं, वो भी बहुत क्लियर थे। एंड आई वाज लाइक कि BMC का बेस्ट बैच है हमारे पास। और फिटजी में भी एक चीज़ है कि वहाँ पे भी बेस्ट बैच बनता है, बट वहाँ फेस टेस्ट होता है तो उसके बाद बनता है CM बैच। उस समय CM बैच था, तो उस समय ऐसे ही होता था। तो मतलब आई वाज लाइक कि चलो ना, क्या जा रहा है, हम लोग फिटजी में भी एडमिशन ले लेते हैं, वहाँ पे फिटजी में एडमिशन ले लेते हैं, BMC छोड़ देते हैं, और वहाँ पे हम लोग एफर्ट डाल करके हम लोग वहाँ का फेस टेस्ट वाला आराम से क्लियर कर लेंगे, CM बैच हम लोग कर लेंगे, ये सोच करके आई वाज लाइक कि चलो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो BMC छोड़ दिया, जो कि बहुत गलत स्टेप था, मतलब आई रियलाइज लेटर कि बहुत गलत स्टेप था ये। एंड ये हुआ, फिर दिसंबर में सब कुछ खत्म, आज लाइक कि एडमिशन अब कंफर्म है, फिटजी जाना है, तो चलो। तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर नॉर्मल जनवरी से सब लोग 10th का प्रिपरेशन करने लगते हैं। देन आई यूज टू प्रिपेयर, एंड मेरे साथ क्या था कि आई वाज लाइक, मार्च का समय था, और वहाँ मतलब एग्ज़ाम्स वहाँ से शुरू हो जाते हैं मार्च से 10th के। तो पता नहीं मेरे मन में क्या आया, आई वाज लाइक कि चलो अब एग्ज़ाम्स आ गया है, तो आई डिड दैट कि वो एक महीना जो पूरे एग्ज़ाम का था, आई स्लेप्ट जस्ट 2 hours, just max to max I slept for 2 hours for the whole month. एंड आई वाज लाइक कि उस समय तो नॉर्मल लग रहा था कि चलो 2 घंटा स्लीप हम लोग ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद नॉर्मल ही लगता था, थोड़ा सा डिजीनेस फील होता था, बट इट वाज नॉर्मल। बट इसके बाद 10th का एग्जाम सारा कुछ खत्म हुआ, अब 11th क्लास शुरू हुआ, और धीरे धीरे मतलब अप्रैल से फिर 11th का शुरू हो गया। हुआ क्या कि एक महीना जो वहाँ पर जो पूरा मतलब हम नहीं सोए वहाँ एक महीना, सिर्फ 2 घंटा का स्लीप लिया, उसका कॉन्सिक्वेंसेस दिखने लगा। आई वाज लाइक कि अंदर से, आई डोंट नो ये मेरे साथ प्रॉब्लम है, सबके साथ होता है, बट एक महीना अगर आप सिर्फ 2 घंटा सो रहे हो, देन जो इंथुसियास्ट अंदर से रहता है, मेरे अंदर से वो पता नहीं अचानक से मेंटली क्या हुआ, वो इंथुसियास्ट सारा कुछ चला गया मेरे अंदर से, कि जेई प्रिपरेशन करना है, ऐसा कुछ जो एक्साइटमेंट रहता है कि नहीं मतलब अब तो एफर्ट्स ही लगाना है, सिर्फ 11th 12th में आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करना, तो सारा कुछ चला गया। एंड फिर जिया क्लासेस भी शुरू हो गया, एंड अंदर से थोड़ा सा रिग्रेट भी था कि कोटा नहीं गए। माय फ्रेंड्स वर लाइक, दे सेड कि कोटा में बहुत अच्छा हो रहा है, यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, और यहाँ के टीचर्स लोग लाइक दे आर आउटस्टैंडिंग वन, एंड ऑब्वियसली द टीचर्स आर आउटस्टैंडिंग देयर, एंड इन्वायरमेंट इट वी या कैन नॉट कंपेयर द environment of Kota. So it was a thing, and the thing was like कि फिटजी यहाँ पे है, अब इनसिक्योरिटी भी फील होने लगा, भाई यहाँ पर अगर बेस्ट बैच चाहिए तो यहाँ का फेस टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। एंड मेरा कुछ हो नहीं रहा था, अभी भी मुझे मेरे मतलब हमको याद है जैसे कि वहाँ पर मैथ्स में कुछ था ट्रिग्नोमेट्री, फिर बेसिक मैथमेटिक्स दे सेड लाइक कि इंटीग्रेशन, बेसिक इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, एंड ये सब था। एंड इस सब में से जब आई वेंट टू सॉल्व ट्रिग्नोमेट्री, आई वाज नॉट एबल टू सॉल्व, and when I was not able to solve, I really felt bad for that. I don't know why, but जो हमको लगता है वो जो मेंटल जो थोड़ा सा चेंज हुआ ना, कि एक महीना आप सिर्फ 2 घंटा स्लीप करते हो, तो जो फटीक फैक्टर रहता है वो दिखने लगा वहाँ से। एंड आई यूज टू बी वेरी सैड बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू सॉल्व, एंड टेस्ट में भी आई वॉज नॉट एबल टू परफॉर्म वेल, मतलब माई कंडीशन वॉज नॉट दैट गुड, एंड माई effectivity was also dying,
इट वाज लाइक वेरी डिटोरिएटिंग, Okay. और अचानक से सब कुछ नेगेटिव जैसा फील होने लगा। एंड उसके साथ ही प्रिपरेशन भी टेस्ट टेस्ट के लिए कुछ खास रहा नहीं। एंड टेस्ट टेस्ट में एग्जाम देने गए, एंड आई नो दैट एग्जाम अच्छा जाने वाला है नहीं। अब साफ पता था कि सीएम बैच भी मिलेगा नहीं फिटजी में, एंड बेस्ट बैच गया। फिटजी का क्या है कि जो नॉर्मल बैचेस रहते हैं पटना में, वो ऑब्वियसली दे कांट बी बेटर देन द बेस्ट बैच ऑफ वीएमसी। वीएमसी इज आल्सो लाइक वेरी गुड कोचिंग Yes. इंस्टीट्यूट। And वही result आया, but shockingly result was so bad. Like I was shocked when I saw negative marks, and not only in one or two. I was like negative in physics, negative in chemistry, and it was like how I मतलब कुछ समझ में नहीं आया यार, ऐसे हो कैसे गया। मतलब नेगेटिव मार्क्स और नेगेटिव कैसे आता है। एंड ऐसा कुछ हो रहा था मतलब मेरे साथ कि आई नेवर एक्सपेक्टेड। एंड पेरेंट्स को भी हम कुछ बताए नहीं कि फेस टेस्ट मेरा ऐसा गया, फिर मार्क्स के बारे में भी नहीं बताया। एंड सीएम बैच वहाँ मिला नहीं, तो हुआ क्या, जैसे कि पहले तो कोटा गया हाथ से, फिर वीएमसी का बेस्ट बैच हाथ से गया, फिर यहाँ पे फिटजी का भी बेस्ट बैच हाथ से गया, उसके बाद नेगेटिव मार्क्स आया। तो जब इतना सारा कुछ आप सिर्फ जेई का कुछ ही महीना स्टार्ट हुआ है और आपके साथ सब कुछ नेगेटिव होने लगा, एवरीथिंग वाज लाइक गोइंग नेगेटिव विच यू नेवर एक्सपेक्टेड। तो होता क्या, वहाँ से आई वाज ब्रोकन फ्रॉम इनसाइड। आई डोंट नो, इट साउंड सिली बट इट वाज वेरी लाइक I was like not in a good situation, and पढ़ाई भी हमसे हो नहीं रहा था अच्छा से। Whenever I was like when going to study and I was not able to solve any problem, I was like very tensed, and many times was like due to many kind of reason I used to cry in my room, and it was like very very difficult time of mine। And ये सब कुछ तब हो रहा था जब I was in initial phase of preparation, एंड ये सब कंटिन्यू रहा 8-9 मंथ्स के लिए सारा कुछ कंटिन्यू रहा। धीरे धीरे क्या हुआ कि 8-9 मंथ्स के बाद वो नॉर्मलाइज होने लगा। नॉर्मल तो हो ही जाओगे आप धीरे धीरे करके। एंड आई यूज टू बी वेरी अलोन इन माई रूम एंड यूज टू क्राई मेनी टाइम्स, इट वॉज माई सिचुएशन। एंड फिर क्या हुआ कि ये तो 8-9 मंथ्स के बाद का बात है, बट जो फेस टेस्ट के बाद जो रिजल्ट आया था उसके बाद आई वॉज लाइक कि 1 महीना क्लास किया उसके बाद फिटजी में। उसके बाद मेरा मन नहीं किया वहाँ जाने का। आई वॉज लाइक कि मेरे को पसंद नहीं आ रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, लाइफ में कुछ अच्छा जा भी नहीं रहा। देन अब आई सेड टू माई पेरेंट्स कि मेरे को कोचिंग नहीं जाना, मेरे को फिटजी नहीं पसंद और कोटा अब जा नहीं सकते हम, अब हम अकेले प्रिपरेशन करना चाहेंगे। तो पेरेंट्स पापा रेसिस्ट किए कि नहीं ऐसे कैसे होगा, तुमको फिर गाइडेंस कहाँ से मिलेगा, तुम प्रिपेयर कैसे करोगे। ही रेसिस्टेड बट समहाउ आई वाज एबल टू मैनेज कि पापा को कन्विंस करवा दी, क्योंकि फाइनेंशियली उतना कुछ नुकसान होने नहीं वाला था, क्योंकि फिटजी में आई वाज लाइक ओके, नॉट ज़्यादा फी नहीं लग रहा था फिटजी में। तो वो हो गया, पापा मान गए थोड़ा, बट ही यूज टू से कि तुमको जाना चाहिए जाना चाहिए। आई वाज लाइक हम ज़्यादा कुछ नहीं बोल देते। तो ये सारा कुछ 8-9 महीने के बाद ये जो बैड सिचुएशन था, यहाँ से बाहर निकले धीरे धीरे। बट फिर हुआ क्या कि जब आपके पास कोई कोचिंग नहीं रहता, जब आपके पास कोई इन्वायरमेंट नहीं है, तो नेचुरल सा बात है आप प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। यू विल बी डिस्ट्रैक्टेड मेनी टाइम्स। अगर आपके अगल बगल कोई प्रिपेयर नहीं कर रहा, यू आर नॉट हैविंग योर फ्रेंड्स, देन आप कैसे प्रिपेयर करोगे। आपके पास इन्वायरमेंट नहीं है। लाइक जेई से आप बिल्कुल कट चुके हो एकदम, आपके पास जेई जैसा कुछ अब है नहीं कि कोई बताते रहे कि जेई है, एग्जाम्स है। अब कोचिंग में आपको नहीं, ना आपका एग्जाम हो रहा है, ना आपका इन्वायरमेंट है, ना आपका फ्रेंड्स है। देन यू आर लाइक अलोन। एंड हुआ क्या कि किसी के उस बैड फेज से बाहर निकल गए, डिप्रेशन या जो भी आप उसको एंग्जाइटी बोल सकते हो, उससे बाहर तो निकल गए। बट उसके बाद आई वॉज लाइक डिस्ट्रैक्टेड काइंड ऑफ पर्सन। पूरा जो 12th क्लास था यहाँ जनवरी, इट वॉज लाइक आई थिंक जनवरी 2019। तो जनवरी 2019 वाज वहाँ से मतलब थोड़ा सा सिचुएशन नॉर्मलाइज होना शुरू हुआ। बट फिर वहाँ से टाइम वेस्टिंग स्टार्ट हुआ, टाइम वेस्ट। आई यूज टू डू लॉट ऑफ टाइम वेस्ट। अब ये सब कुछ कंटिन्यूड रहा नवंबर तक। अब नवंबर यहाँ पे आ गए, अब बहुत कम प्रिपरेशन हुआ था मेरा। इवन 12th बोर्ड के लिए भी कुछ खास प्रिपरेशन नहीं था। अब दिसंबर में क्या होता है कि द स्कूल्स आर लाइक डेट से कि आपको प्री बोर्ड का एग्जाम है, लैब का एग्जाम है, लैब होने वाला है, तो उसका डेट्स आने लगता है दिसंबर में। सो मेरे साथ भी डेट्स आने लगा। तो मतलब आई वाज लाइक कि ठीक है अब डेट आ रहा है, चलो एक बार 12th बोर्ड देख लेते हैं। तो 12th बोर्ड का व्हेन आई वाज लाइक वेंट टू सी द क्वेश्चंस ऑफ प्रीवियस ईयर, आई वाज लाइक कि भाई मेरे से तो ये सब भी नहीं हो रहा। लाइक 70% ऑफ द थिंग्स आई वाज नॉट एबल टू गेट। जब जो एनसीईआरटी का जो पार्ट 2 रहता है 12th का,
इट वाज कंप्लीटली ब्लैंक फॉर मैथमेटिक्स पार्ट. एंड फिर उसके बाद फिजिक्स में भी आई वाज नॉट एबल टू गेट इट क्लियरली दैट व्हाट क्वेश्चन इज सेइंग इवन, एंड दैट वाज लाइक वो सब 12th बोर्ड का प्रीवियस ईयर पेपर के साथ हो रहा था. एंड केमिस्ट्री ऑब्वियसली आई वाज ब्लैंक. सो आई वाज लाइक कि मैं उसमें क्या हुआ कि हम बहुत ज़्यादा डर गए कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है. और एक बात और कि जो 75% का जो क्राइटेरिया था जो कि कोविड के कारण हटा वो 2020 में, वो उस समय तो कोविड था नहीं. आई थिंक 2019 के दिसंबर एंड में 2020 मार्च में कोविड आया. आई वाज लाइक वेरी फियर्ड कि भाई अगर 75% ही नहीं आएगा तो भाई जे एडवांस तो गया काम से. अब कैसे होगा जे एडवांस. तो एंड मतलब आपकी पूरी 11 से लेके पूरी 12 तक सेम सिचुएशन चलती रही इसी तरीके से. या आई वाज लाइक पहले यू नो डिप्रेशन काइंड का उस टाइप का चीज. फिर आपके पास इन्वायरमेंट नहीं होने के कारण इट वाज लाइक ऐसा नहीं था कि प्रिपरेशन बिल्कुल जीरो था. इट वाज लाइक कि थोड़ा थोड़ा पढ़ करके 20-30% आई वाज एबल टू मैनेज. बट 20-30% है ही क्या यार, मतलब क्या ही कर लोगे उस बेसिस पे. तो उस मतलब तो इस तरीके से फिर तुम्हारा फिर बोर्ड्स आ गया. बोर्ड्स आ गया एंड वाज लाइक बोर्ड्स में क्या हुआ कि उसमें आई वाज लाइक इन वेरी फियर कि भाई सिलेबस मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, अब होगा कैसे ये सब. तो ठीक है, मतलब अब क्या ही कर सकता है. वहां से प्रिपेयर करना स्टार्टेड. 7 डेज का मतलब 7 दिन पूरा दिन भर पढ़ते रहे, 1 वीक पूरा. फिर धीरे धीरे वो डर मन से गया कि थोड़ा सा ग्रिप आने लगा सिलेबस के ऊपर जब अच्छा से पढ़ना शुरू किया. एंड 7 डेज बाद आई वाज सिटिंग इन माय रूम एंड वाज थिंकिंग लाइक कि यार ये हम कहाँ आ गए, अपने आप को हम कहाँ गिरा लिए. आई यूज्ड टू बी वेरी नाइस इन क्लास 9-10th. आई यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ फिजिक्स एंड ऑल्सो सॉल्व जे एडवांस प्रॉब्लम. लाइक जो फिजिक्स में HCR में पढ़ते थे तो वहाँ से जे एडवांस का भी प्रॉब्लम आई यूज्ड टू सॉल्व बोथ इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स. एंड फिजिक्स में हम लोग आई कंप्लीटेड 35-40% पार्ट ऑफ HCR में 11th एंड 12th लाइक. बट वहाँ से यहाँ पे मतलब पूरी तरह से कहाँ हम आगे. लाइक इट इज़ लाइक कि 12th के लिए हमको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, लाइक 75% लाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है. एंड आई फेल्ट रियली बैड एट दैट इंस्टेंट. बट वहाँ से यू कैन से कि वहाँ से थोड़ा आँख खुला मेरा कि नहीं, अब हमको यहाँ से प्रिपरेशन करना ही होगा. यहाँ से आई कांट सी माई सेल्फ, आई एम नॉट लाइक दैट, दिस इज नॉट मी. आई हैव टू प्रिपेयर, आई हैव टू बाउंस बैक. वहाँ से फिर 12th का प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ दिसंबर एंड से. जनवरी आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग टिल फरवरी एंड. फिर मार्च से एग्जाम शुरू हुआ 12th का. तो 12th में बेसिकली आई डिड मेरा एग्जाम्स अच्छे गए बिकॉज सिंस आई स्टडीड I was able to manage 2-2.5 महीना. They are like sufficient for 12th. So I prepared for 12th Yes. and exams all went well. And मेरा कोई भी एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ 2020 में. सॉरी 2020 कहाँ 2020 में वो कैंसिल नहीं हुआ. आई गेव ऑल माई एग्जाम्स. उसके बाद कोविड आ गया. तो कोविड आने के बाद लाइक अब आप सारे कोचिंग बंद हो गए एंड यू कांट गो कोटा बिकॉज कोटा वाज कम्प्लीटली शट डाउन. एंड पटना Yes. में यहाँ आई नो दैट ड्रॉपर्स लोग के लिए कोई यहाँ केयर नहीं करता, कोई कोचिंग स्टूडेंट. दे आर लाइक जस्ट फाइनेंशियल, उनसे पैसा लो जस्ट काम खत्म है. कोटा में अब कोटा आप जा नहीं सकते बिकॉज कोटा वाज शट डाउन. सो व्हाट आई सेड कि ठीक है यार, अब सब कोई नहीं जा रहा कोटा. एंड आई वाज लाइक कि ठीक है, अब यहाँ से खुद से प्रिपरेशन स्टार्ट करना. एंड मेरे साथ कोई ज़्यादा प्रॉब्लम था भी नहीं. फिजिक्स एंड मैथ्स आई वाज एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स माई सेल्फ बिकॉज माई बेसिक्स वर स्ट्रॉन्ग. आई नो दैट कि मेरे साथ बुरा हुआ, लेकिन एक चीज जो कंफर्म था कि वो मैं बेसिक स्ट्रॉन्ग था फिजिक्स और मैथ्स दोनों में. तो बेसिक से कभी स्ट्रगल नहीं करना पड़ा. एंड उसके बाद खत्म हुआ मार्च के मिड में सारा कुछ एग्जाम खत्म हुआ 12th का. एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग. पहले थर्मोडायनेमिक्स, फिर उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स, वेव्स. आई एंजॉयड ऑल दीज टॉपिक्स एंड ऑब्वियसली सॉल्विंग सम डिफिकल्ट क्वेश्चंस आल्सो. लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो वो आपका 1980s के समय का जो फिजिक्स का जो प्रॉब्लम्स आता था 10 मार्क्स 8 मार्क्स वाला, I used to solve them. Obviously they took more time, 30 minutes. Sometimes they take 30 minutes, sometimes they take 10-15 minutes. But I solved. I never excluded them. I used to solve them. And some difficult problems like I solved Irodov only for kinematics and laws of motion. But उसके बाद मेरे को थोड़ा एक अच्छा किताब मिला like DC पांडे का जो 500 problems of physics आता है ना, like that was like okay book. Like and उसका क्या है कि Irodov अच्छा बुक है, बट जैसे कि आप मॉडर्न फिजिक्स इरोडोव के लिए नहीं कर सकते, वेव्स के लिए भी आप उतना ज्यादा नहीं कर सकते. आई प्रेफर सम बुक की डिफिकल्टी लेवल इरोडोव के जितना रहे बट जेई के अकॉर्डिंग हो रहा है. सो आई यूज टू सॉल्व डीसी पांडे 500 प्रॉब्लम फिजिक्स. एंड इन मैथमेटिक्स आई ऑल्सो सॉल्व अरिहान सीरीज. तो वहाँ से प्रिपरेशन बेसिकली आई स्टार्टेड एट माई फुलेस्ट. एंड वहाँ पे भी लाइक व्हेनेवर लाइक मेरा एक्यूरेसी का प्रॉब्लम था.
एक्यूरेसी आई वाज लाइक थोड़ा सा मतलब गलती होता था मेरे से ज़्यादा औरों के मुकाबले। तो हुआ क्या कि मतलब प्रीवियस ईयर बनाने लगे, कभी कभार ऐसा हुआ कि क्वेश्चन बनता था तो लेट से बनता था, 20 मिनट्स का भी लग जाता था, 30 मिनट्स लग जाता था, मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन में। एंड एक्यूरेसी कभी 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 गलत आ जाता था, तो ये सब इरिटेट करता था यार कि इतना प्रिपेयर के बाद भी अगर आप लग रहा है उस चैप्टर का प्रिपरेशन आप इतना सारे क्वेश्चन कर चुके हो और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यू आर just doing silly mistakes and you are doing taking more time to get solved, it actually do not feel good. Okay, like उसको भी मैनेज कर लिया। सो फिजिक्स का ठीक था, लाइक मैथमेटिक्स व्हेन आई वाज सॉल्विंग few parts I found it difficult, like when you see integration part, इंटीग्रेशन में कुछ ऐसा है कि लाइक यू विल लाइक अगर आपको क्वेश्चन में क्लिक करता है देन यू विल बी एबल टू सॉल्व फाइन, देन फाइन। बट अगर आपको क्लिक नहीं करता देन आप उसको बैठे रह जाओगे लेकर के, यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व। So कुछ topics I found difficult, but rest of the part I found it interesting, and mathematics also. Same thing like I solved, Arihan says mathematics and previous year questions. It was very important with all those 10 marks question, 8 marks question again. So mathematics, physics was going nice, and accuracy का मेरा problem था, तो I was fighting with that. एंड ऑल्सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी जो कि जैसे जो जो 2010 के बाद का जो क्वेश्चन है उसमें मतलब थोड़ा सा टाइम लेकर के, लाइक टाइम लिमिट सेट करके उसको सॉल्व करना, फिर ताकि उससे आपका स्पीड इंक्रीज होता है, उस वो करना ज़रूरी होता है कि आप टाइम लिमिट लेकर के सॉल्व करो। फिर एक्यूरेसी पे भी थोड़ा सा मतलब कॉन्सेंट्रेट करके सॉल्व करना, और क्या ही कर सकते हैं। तो वो किया, फिर ये सब चलता रहा। आई ट्राई टू कंप्लीट सिलेबस। टाइम को उतना ज़्यादा रहा नहीं क्योंकि सिलेबस मेरा पहले से भी कंप्लीट था, ड्रॉप ईयर ऐसा नहीं था कि आई वाज जीरो, आई वाज लाइक 30-40% आई हैड डन। सो बेसिकली वो 60% के आसपास या 65% के आसपास ही सिलेबस कंप्लीट करना था, एंड मोस्टली केमिस्ट्री में ही बहुत ज़्यादा करना था। तो ये सब तो चलता रहा फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में। एंड ओके, तो मतलब तुम्हारा 12th में कैसा रहा? 12th के बाद जब तुमने एग्जाम दिया कोविड के बाद में, तो वो जो तुम्हारा 2020 वाला एग्जाम था वो कैसा रहा था? आई थिंक दैट वाज बोर्ड्स एग्जाम यू आर टॉकिंग। हाँ, बोर्ड्स एग्जाम के बाद में मेंस दिया था 2020 में या नहीं दिया था फिर? ये एक्चुअली आई फॉरवर्ड टू से लाइक क्या हुआ कि जब जेई मेंस का, जैसे कि आई वाज लाइक कि अब तो यार, अब जैसे कि आप ड्रॉपर हो, जब आप 2020 टारगेट कर रहे हो देन एक अलग स्ट्रैटेजी होगा, 2021 में आप टारगेट कर रहे हो देन वो एक अलग स्ट्रैटेजी होगा। 2020 में क्या है कि ऑब्वियसली यू विल गो विथ आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं रहेगा, आप एग्जाम देने जा रहे हो, आपको पता है कि आप 2020 टारगेट कर रहे हो तो आपको सिलेबस हाफ मतलब जितना भी आपका कंप्लीट है आपको उसके ऊपर काम करना। बट आप 2021 में हो तो यू आर क्वाइट फाइन कि भाई अब तो सिलेबस कंप्लीट करना है अपने को पूरा। तो आई सेड कि यार क्यों करे टारगेट, अब 2021 ही देना है, 2020 देने का क्या मतलब रहता है। देन लेट्स फोकस कंप्लीटली ऑन 2021। ओके, एंड तो 2020 का तुमने एग्जाम स्किप कर दिया था फिर? या आई स्किप्ड दैट बिकॉज उसके लिए प्रिपरेशन स्ट्रेटजी अलग करना पड़ता है। तो 2021 आई फोकस 2021 completely, and वही मैथ्स फिजिक्स आई वाज एबल टू सॉल्व दैट वन। उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है, फिजिक्स में तो उतना ज़्यादा दिक्कत आया नहीं, आई वाज एबल टू सॉल्व दैट। एंड उसके बाद फिर जब केमिस्ट्री की तरफ आए देन आई वाज लाइक कि फिजिकल केमिस्ट्री हो रहा था, वो नॉर्मल था। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में कुछ समझ में नहीं आया कि यार यहाँ करे तो करे क्या। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ऐसा चीज़ है कि विदाउट टीचर इट विल लाइक काइंड ऑफ वेरी डिफिकल्ट थिंग। मतलब ऐसी कोई बुक भी नहीं है जहाँ से तुम ऑर्गेनिक पूरा समझ सकते हो या फिर इनऑर्गेनिक पूरा कर सकते हो, वो आप किसी टीचर के थ्रू ही पढ़ना पड़ेगा। फिजिक्स में आपके पास एचसी वर्मा है, मैथ्स में आपके पास सिंगेज अरिहान था, आप कुछ में फॉलो कर लो जो कि पूरी तरह से जेई ओरिएंटेड है। इन ऑर्गेनिक यू विल सी दैट व्हाट बुक यू विल फॉलो, लाइक द बुक्स आर नॉट जेई ओरिएंटेड, बट समवन सजेस्टेड मी कि चलो मॉरिसन बॉयड पढ़ो तो उससे थोड़ा क्लियर होता है। नहीं, आई स्टडीड मॉरिसन बॉयड आल्सो, बट कुछ वहाँ से मतलब उतना अच्छा, वहाँ से मतलब जेई ओरिएंटेड नहीं लगा मेरे को उतना। बट आई स्टडीड बहुत ज्यादा हायर स्टडीज के लिए हो गया फिर वो। हाँ, वही दैट्स व्हाट आई विल से कि, और इनऑर्गेनिक में भी वही चीज वेयर यू विल फाइंड द मटेरियल। सो आई वाज लाइक वेरी, कुछ समझ में आया था ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक होगा कैसे। एंड ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, आपको कम समय में ज्यादा मार्क्स स्कोर करके देने वाला चीज है। एंड आई वाज लाइक कि आई वाज विथ नो ऑप्शन लेफ्ट, तो व्हाट आई सेड कि ठीक है अब कहाँ से करें। अब यूट्यूब में भी आई वाज नॉट लाइक यूट्यूब ओरिएंटेड, हम उतना नहीं थे, मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आता था। तो YouTube oriented I was not that much, and I also skipped organic में जाने दो इसको, but it was not good.
क्योंकि ये सिर्फ इसलिए होगा क्योंकि आई वाज नॉट हैविंग कोचिंग, आई वाज नॉट हैविंग गाइडेंस। एंड फिजिकल तो ठीक ठाक चल रहा था, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, उसके लिए भी स्टैंडर्ड बुक्स है आई थिंक प्रेजेंट है। और उसके बाद लाइक ऑर्गेनिक इकोनॉमिक आई वाज लाइक ओनली एनसीईआरटी लेवल पे था। कुछ इनऑर्गेनिक में एक बुक था ओपी टंडन करके, आई थिंक आई रेड दैट पार्ट्स, वो थोड़ा सा पढ़े। और ऑर्गेनिक में आई वाज नॉट एबल टू गेट इट। एमएस चौहान का बुक था, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए था, बट उस वहां से कुछ ही क्वेश्चन होता था, ज्यादा नहीं होता था, क्योंकि आपके पास कॉन्सेप्ट है नहीं, आप कैसे करोगे ऑर्गेनिक में। सो ये तो चलता रहा। धीरे से अब थोड़ा सा मतलब जेई मेंस आप करीब आने लगा। जेई सेकंड थर्ड अटेम्प्ट आई वाज नॉट एबल टू परफॉर्म वेल, बट थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा यार, सेकंड थर्ड अटेम्प्ट खराब गया। फोर्थ अटेम्प्ट वाज माय बेस्ट अटेम्प्ट, एंड फोर्थ अटेम्प्ट में आई स्कोर्ड हाईएस्ट बेस्ट परसेंटाइल इट वाज। एंड उसके बाद जेई मेन क्लियर हुआ, एंड उसके बाद आई वाज समथिंग ऑन द बेसिस ऑफ जेई मेन, आई वाज लाइक गेटिंग एनआईटी वारंगल ईसीई एंड और आई थिंक एनआईटी ट्रिची का डबल ई इलेक्ट्रिकल वाला। आई वाज लाइक ओके ठीक है, यहाँ से तो ठीक है, अब एनआईटी तो कंफर्म हो ही गया। अब अपना जे एडवांस पे 1 महीना तो बचा हुआ है। अब वहां से आई वाज लाइक कि भाई अब क्या करते हैं। अब 2019 2020 2018 2019 2020 ये 3 पेपर आई अटेम्प्टेड।